Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am here on the stage of Ali English House Academy. We give the opportunity to our students to develop their communication and personalities through their speeches. Let's hear a speech from this girl, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brothers and sisters, how are you all doing today? That's really wonderful. I'd like to thank Ali English House Academy for giving me an opportunity to develop my personality. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma. Today I am going to say the importance of guarding the tongues. गाड़ी द टंग. अल्लाह की नेमतों में एक अहम नेमत यह भी है कि जुबान की हिफाजत करना. जुबान एक गोश्त का हिस्सा है जिससे हड्डी नहीं है. The tongue is a part of the meal which does not have any bones. If we use our tongue in the right way, it makes you higher in the eyes of a people. If you use our tongue in the wrong way, it degrades you in the eyes of a people. अगर हम अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये लोगों के नज़रों में हमें ऊंचा कर देती है. अगर हम अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये लोगों की नज़रों में हमें नीचा कर देती है. Likewise, this tongue can take us to the paradise or to the hell. This tongue can take us to the paradise when we recite the kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ये जुबान हमें जन्नत में ले जा सकती है और दोज़ख में भी ले जा सकती है. अगर हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब हम अपनी जुबान से पढ़ते हैं तो यह हमें जन्नत में ले जाती है. इसी तरह यह जुबान हमें जहन्नम में भी ले जा सकती है. When we associate with Allah, जब हम अल्लाह से शिरक करते हैं तो यह जुबान हमें दोज़ख में ले जाती है. So what we understood, if we use our tongue in the right way, it makes higher in the eyes of a people. If we use our tongue in the wrong way, it degrades you in the eyes of a people. So make sure that all of you use your tongue in the right way. When we use our tongue, see if someone wounded with your tongue, it does not heal quickly. If someone get a sword wound, it heal quickly. If someone get a sword wound, it heal quickly because of a medicines. अगर कोई किसी इंसान को तलवार की धार लग गई हो तो ये जल्दी ठीक हो सकती है क्योंकि मेडिसिन की वजह से जल्दी ठीक हो सकती है. अगर कोई इंसान को अगर तुम्हारे लफ्जों से कोई इंसान को हर्ट किया हो तो यह जल्दी ठीक नहीं हो सकता. Tongue is a good as well as bad. जुबान अच्छी भी है और बुरी भी है. इस बात में एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ. किसी बादशाह ने कहा कि जाओ और सबसे अच्छी चीज ले आओ, जिस्म की सबसे अच्छी चीज ले आओ. तो वो आदमी जाता है और जुबान को ले आता है. तो फिर बादशाह ने कहा जाओ अब जिस्म की सबसे बुरी चीज ले आओ. तो वो आदमी गया और फिर जुबान को ले आता है. तो हमें क्या पता चलता है, जुबान अच्छी भी है और बुरी भी है. अल्लाह सुब्हानहू अच्छी भी है और बुरी भी है. जुबान अच्छी है और बुरी भी है क्योंकि हम सबको पता है हमारे खानों में दो फरिश्ते होते हैं, एक दाएं और एक बाएं. जो भी हम बात करते हैं वो उस पॉइंट्स को नोटिस करते हैं. We all know that in our arms there will be two angels in the right and in the left of our shoulders. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Qaf in verse number 18, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Man does not utter any words except that with him, if in an absurd prepared. जो कुछ तुम अपनी जुबान से निकालते हो उसे फरिश्ते लिख लेते हैं. हम लोगों में से ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में बुरा या फिर अच्छा कहने लगते हैं. जब कोई दूसरों के बारे में कहता है तो उन्हें कोई अगर कोई पॉइंट नहीं मिले तो वो गीबत करना शुरू कर देता है दूसरों के बारे में, या फिर तो अच्छा बोलता है या फिर बुरा बोलने लगता है. हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना. खैर करना एक अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए जैसा खैर कभी नहीं करना चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अहज़ाब में वर्स नंबर 70 and 71, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीद. ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अच्छी बात करो. यहाँ गौर फरमाए, अल्लाह हमसे कह रहा है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अच्छी बात करो. जब हम किसी से बात करते हैं तो अच्छी बात करना चाहिए. अगर हम बुरा बात करेंगे तो यह हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, यह हमें जहन्नम में ले जाएगा. एक अबू दाऊद का रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम और जन्नत की सैर कराने ले जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख की ओर देखते हैं तो वहाँ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में उनकी उंगलियां लोहे की जैसी लंबी होती हैं. वो अपनी ही खुद की उंगलियों से अपने जिस्म और अपने मुंह को लौंच रहे होते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये अपने ही हाथों से अपने मुंह और जिस्म को क्यों लौंच रहे हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं ये वो लोग हैं जो दुनिया में गोश्त खाया करते थे, यानी गीबत करते थे. इसी बात पे एक साहिह बुखारी की हदीस है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हदीस नंबर 6470 पर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और कौमे आखिरत पे ईमान रखता है वो खैर की बात कहे या फिर खामोश रहे. यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं या तो फिर खैर की बात कहें या फिर खामोश रहें. खामोश रहने से क्या होता है? खामोश रहने से हमें ही निजात है, खामोशी में निजात है. खामोश हमें बिल्कुल ज़्यादा तो खामोश नहीं रहना चाहिए. अगर कोई मुस्लिम भाई लड़ रहे हैं तो हमें हक की बात करने पे खामोश नहीं रहना है. खामोश जब रहो जिसमें आपकी निजात हो तो खामोश रहना. ये बयान थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, आप सब भी सुनको बोर लग रहे तो थैंक. आप सभी को इस बयान से एक मॉरल मिली होगी. आपकी जुबान से जो भी लफ्ज़ निकालते हो वो अच्छी बात करो. यानी आपके लफ्ज़ से कोई इंसान तकलीफ में हो जाए तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते. Thank you for listening me patiently. Jazakallah khair. MashaAllah, that was really wonderful speech. She said about importance of guarding the tongue. Thank you very much for listening to us patiently. Jazakallah khairan. Have a nice day.